गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम हमारा एक्सरसाइज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अ सैंपल ऑफ HI is placed in the flask at a pressure of 0.2 atm. At equilibrium, the partial pressure of HI is given 0.04. Then what will be the Kp? Let's calculate this. So HI से reaction start किया है, okay. So question number 11, HI से reaction start किया है, that's why 2HI gives us H2 plus I2. This will be our reaction. Look at this. Okay. Now, placed in the flask at 0.2 atm pressure. So, initial pressure of HI is 0.2 atm. And this both will be 0. Now, at the equilibrium, partial pressure of HI is 0.04. So here 0.2 minus 2x, and here x and x at the equilibrium, right? Okay, ये कितना है उन्होंने दे दिया है 0.04. So यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. So let's find out the x. Therefore 2x is equal to 0.2 minus 0.04. Therefore 2x will be equal to 0.16. Okay, and x will be equal to 0.08. So H2 pressure will be equal to 0.08 and I2 will be also 0.08. Now let's put down the formula of the Kp. Therefore Kp will be equal to pressure of H2 into pressure of I2, partial pressures, divided by partial pressure of HI square. Why square? Because 2 mole of HI is there. Therefore Kp will be equal to, put down the values, 0.08 into 0.08 divided by 0.04 into 0.04. Now here 2 is remaining and likewise here 2 is remaining. So Kp will be equal to 4, and that is our answer. A simple 2-marker question. Okay. After that, question number 12. A mixture of N2, H2 and NH3 is introduced into 20-liter vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant Kc is given 1.7 into 10 raised to 2. So question number 12, Kc is equal to 1.7 into 10 raised to 2. Now look at the values they have given. Value of N2, value of H2 and value of NH3. What they want to find out?
इज द रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम, यानी कि हमें QC फाइंड करना है। QC कैसे फाइंड करोगे, तो KC के फॉर्मूला में सीधा अप्लाई कर दो, ये रहा रिएक्शन N2 + 3H2 gives me 2NH3. So reaction is N2 plus 3H2 gives us 2NH3. Therefore, Kc will be equal to concentration of NH3 square divided by concentration of N2 and concentration of H2 square cube. Now put down the values, and instead of Kc we have to use QC, right? Because Kc is given and we want to discover the QC. Okay, now QC will be equal to, put down the values, 8.13 divided by 20, because this is amount and this is volume. Amount divided by volume give me concentration. So 8.13 divided by 20, 8.13 divided by 20 whole square divided by 1.57 divided by 20 into 1.92 divided by 20 whole cube. Now let's simplify this. So in the denominator of the numerator, let's cancel out the 20. So 220, because 20 into 20 स्क्वायर है ना यहाँ पे, so यहाँ से 2 20 और निकल जाएंगे, एक ही 20 बचेगा, सिर्फ एक 20 बचेगा. सो 20 20 40 जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में आ जाएंगे, राइट. सो 8.13 इंटू 8.13 into 20 into 20. Now that will be divided by 1.57, again divided by 1.92, again divided by 1.92, again divided by 1.92. So your QC will be equal to, after the simplification, 2379. .23. Okay, and look at the value of Kc. Kc is equal to, okay, 10 raised to 2 power अंदर दे दो, so 170. So Qc is greater than, therefore Qc is greater than Kc, and reaction will be reverse, backward reaction will occur. Okay, after that question number 13, ये आपको अपने आप करना है. यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला को यूज करके आपको उसका इक्वेशन बनाना है, केमिकल इक्वेशन. वो तो आप अपने आप कर सकते हो. जो न्यूमरेटर है वो प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर है वो रिएजेंट, और पावर है वो मोल है. सो 4NO into 6H2O gives me 4NH3 and 5O2. हो गया. After that question number 14, 1 mole of H2O, 1 mole of CO taken in 10 liter vessel, heated at 725 Kelvin. 40% water by mass, यानी कि अगर 100 ग्राम टोटल मास लिया है उसमें से 40 ग्राम वाटर होगा और 60 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड होगा.
टोटल 100% में से 40% वाटर है, तो 60% हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों रिएजेंट है ना आपके। लेकिन हमने 100 मोल नहीं लिया, 100 ग्राम नहीं लिया, हमने 1 मोल लिया है। तो अगर 100 में से 40, तो 1 आउट ऑफ 0.4, राइट। चलो, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। What is the reaction? H2O plus CO gives us H2 plus CO2। चलो, अब H2O जो है वो 0.4 है और मोनोऑक्साइड जो है वो होगा 0.6, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां से 0.4 में से x जितना कम होगा और ये 0.6 में से x जितना कम होगा, बनेगा कितना? x। देयरफॉर Kc क्या आएगा? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, H2 इंटू CO2 यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2O इंटू CO, दोनों सेम है? नहीं, 0.4 माइनस एक्स इंटू 0.6 माइनस एक्स। समझ में आया? देखो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। अब देखो, हमने ये वर्ड मिस किया, एट द इक्विलिब्रियम। कौन सा वर्ड मिस किया? एट द इक्विलिब्रियम। अब देखो यहां पे, अगर वो वर्ड हमने मिस नहीं किया होता तो चेंजेस क्या होते, यानी कि वो वर्ड अगर नहीं होता तो क्या होता? तो यहां पे 1 1 और ये 0 0 होता, और यहां से 0.4 जितना यूज होता, यानी कि 0.4, यहां पे भी 1 माइनस 0.4 बनता कितना? 0.4 0.4। चलो, इसमें से 0.4 निकालोगे, बचेगा कितना? 0.6, और यहां पे भी 0.6। यानी कि एक वर्ड की कीमत देख सकते हो आप, 8 इक्विलिब्रियम लिखा है ना वहां पे, राइट। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? इट विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.6। अब कौन सा सही कौन सा गलत कैसे पता करोगे? देखो, अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो Kc चाहिए होगा, राइट। और उन्होंने तो Kc कैलकुलेट करने को बोला है, यानी कि ये वाली मेथड गलत हुई। समझ में आया? तो आपको क्या याद रखना है, जब कभी भी एट इक्विलिब्रियम लिखा हो तो ऑलवेज आपको आपके ओरिजिनल मोल में से उतना अमाउंट डिडक्ट करना है, याद रखना, ठीक है। यहां पे 40% वाटर बनता था बायोमास, तो मैंने 0.4 1 मोल में से 0.4 मोल यूज कर लिया 40%। अगर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, अगर ये 0.4 यूज होता है तो ये भी 0.4 यूज होगा, तो बनेगा दोनों कितना? 0.4 0.4। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो, तो इतना सा छोटा सा 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15, आपको टेम्परेचर दिया है, रिएक्शन दिया है H2 plus I2 gives me 2HI, और उसका Kc दे दिया है। देखो, चलो, क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शन दिया है H2 plus I2 gives us 2HI। ओके, चलो, इसके लिए हमें Kc दिया है
Kc इज इक्वल टू 54 पॉइंट कितना था 54.8। चलो अब करना क्या है, इफ 0.5 मोलर HI इज टेकन, ओके रिएक्शन रिवर्स हो चुका है, 0.5 मोल HI लिया है, यानी कि ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब रिएक्शन क्या होगा, 2HI से क्या बनेगा, H2 प्लस I2, यानी कि रिएक्शन को उल्टा कर दिया। अगर रिएक्शन को उल्टा किया है तो आपका Kc भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/54.8। रिएक्शन उल्टा करोगे Kc भी उल्टा। ये इनिशियली 0.5 मोल लिया है तो ये दोनों 0 0 रहेंगे। यहां से 0.5 में से 2x जितना कम होगा और बनेगा कितना, x एंड x जितना। ओके चलो अब Kc की फॉर्मूला लगाओ, तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, H2 इंटू I2 यानी कि x इंटू x स्क्वायर, और नीचे HI का स्क्वायर यानी कि 0.5 माइनस 2x का स्क्वायर। चलो अब Kc की वैल्यू है 1/54, therefore 1/54.8 is equal to x square upon 0.5 minus 2x। क्लियर। चलो अब स्क्वायर रूट निकाल लो, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी वॉल ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो 1/54 का स्क्वायर रूट निकाल लो, बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो उसका स्क्वायर रूट होगा 7.4, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 7.4 विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 2x। अब इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना इजीली, यहां से आपको x फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो 0.5 माइनस 2x will be equal to 7.4x, therefore 9.4x will be equal to 0.5, और यहां से आपको x मिल जाएगा कैलकुलेटर से। ठीक है, और x की वैल्यू यहां पे लगा दो तो आपको तीनों का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सम नंबर 15। आफ्टर दैट सम नंबर 16, सेम टू सेम सम है, ये आपको अपने आप करना है। यहाँ पे HI दिया था, यहाँ पे ICL दिया है 0.78। सेम तरीके से आपको पूरा सम करना है। फर्क इतना है, यहाँ पे इस इक्वेशन का Kc दिया है, यानी कि आपको 0.14 का स्क्वायर रूट निकालना है और उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्शन उल्टा किया था, दैट्स व्हाई हमने Kc उल्टा किया था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17, देखो आपको Kp दिया है 17, क्वेश्चन नंबर 17। चलो हमें Kp दे दिया है, कितना है देखो 0.04, चलो 0.04 atm हो गया Kp। टेम्परेचर दिया है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन of C2H6 when it is placed in the flask at 4 atm pressure। अब इसका इनिशियल प्रेशर दिया है तो 400, यहां से 4 माइनस x बनेगा x और x, राइट। समझ में आया, डी वाली मेथड याद है ना आपको, तो डी वाली मेथड से b स्क्वायर माइनस 4ac से आपको x फाइंड करना है, और उसके बाद वहां से आपको सबकी प्रेशर वैल्यू मिल जाएगी। चलो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको होमवर्क में करना है। देखो ये 5 मार्कर सम है, लेकिन 3 सम आपको एक साथ जोड़ के दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है,
अब पहला क्वेश्चन देखो, राइट अ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्यूसी। क्यूसी का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे? बहुत ही सिंपल रहेगा ये। चलो पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको क्यूसी की फॉर्मूला लिखनी है। क्या रहेगी वो? CH3COOC2H5 इंटू H2O डिवाइडेड बाई CH3COOH इंटू C2H5OH। फिर सम नंबर 2 है, देखो यहां पे आपको केसी फाइंड करना है, क्योंकि आपको वैल्यूज दी है। देखो इनिशियल वैल्यू दी है एसिडिक एसिड 1 मोलर और इथेनॉल 0.18 मोलर। उसमें से इथाइल एसीटेट बनता है 0.171, तो 1 माइनस 0.171 एसिडिक एसिड का हो जाएगा वैल्यू इक्विलिब्रियम का, और 0.18 माइनस 0.171 वो वैल्यू हो जाएगा इथेनॉल का इक्विलिब्रियम वैल्यू। यानी कि इस वैल्यू को इन दोनों में से माइनस करोगे तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम वैल्यू मिलेगा, और ये वैल्यू H2O का रहेगा। यानी कि अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा केसी का? 0.171 इंटू 0.171 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.171 इंटू 0.18 माइनस 0.171। यहां से कैलकुलेट करके आपको केसी मिल जाएगा। फिर यहां पे आपको सेम प्रोसीजर करके क्यूसी कैलकुलेट करना है, और क्यूसी कैलकुलेट करने के बाद केसी से आपको कंपेयर करना है, और आपको बताना है क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है, ज्यादा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, नहीं है, फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा। सिंपल। यानी कि 3 छोटे छोटे सम आपको एक के अंदर मिक्स करके दे दिया। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 19। आपको यहां पे PCl5 दिया गया है और इक्विलिब्रियम अटेन किया है। अब PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो आपको PCl3 एंड PCl2 का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी 0.05 मोलर, यानी कि इक्विलिब्रियम के बाद का प्रेशर कंसंट्रेशन दिया है। तो ये सम थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो सम नंबर 19, आपको रिएक्शन दिया है PCl5 में से बनेगा PCl3 प्लस Cl2। चलो अब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम पे ये बनता है 0.05 मोलर, और ये तो पता नहीं है, तो x रख दो, इक्वली बनेगा, ठीक है। चलो अब आप अगर Kc की फॉर्मूला लगाते हो, यहाँ पे देखो Kc दिया है आपको, तो Kc की फॉर्मूला क्या बनेगी, x² अपॉन 0.05। Kc तो दे दिया है आपको, कितना है देखो 8.3 इंटू 10⁻⁻3, therefore 8.3 इंटू 10⁻⁻3 will be equal to x² divided by 0.05। अब 0.05 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा आंसर 8.3 इंटू 0.05, आंसर रहेगा x² इक्वल टू 0.415 इंटू 10⁻⁻3। चलो अब एक नंबर शिफ्ट करो, तो 4.15 इंटू 10⁻⁻4। अब 4.15 का स्क्वायर रूट निकालना है। चलो इसका स्क्वायर रूट आता है 2.03। सो सिंपली x विल बी इक्वल टू 2.037
इंटू 10⁻²। तो मिल गया कॉन्सेंट्रेशन दोनों का, PCl3 NCl2 का। हो गया कंप्लीट। समझ में आया? चलो, आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट सम नंबर 20। वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर। स्टील बनाने की प्रोसीजर में ये एक रिएक्शन आती है जहां पे FeO को हम CO से रिएक्ट करवाते हैं, जहां से FeNCO2 बनेगा। ठीक है, चलो अच्छे से ध्यान से देखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं, सम नंबर 20। FeO जो कि सॉलिड रहता है उसको हमने रिएक्ट करवाया CO से जो गैस है, यहां से बनेगा Fe जो कि सॉलिड है, NCO2 जो कि गैस है। ये रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब करना क्या है देखो। Kp दिया है 0. Kp दिया है हमें 0.265, वही है ना, 0.265, यस। टेम्परेचर दिया है। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। अब दोनों का इनिशियल प्रेशर दिया है, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। चलो PCO दिया है सबसे पहले, तो PCO कितना है, इट इज 1.4 atm, और PCO2 कितना है 0.80। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी सम किए हैं वो सारे सम के अंदर इनिशियली हमारे पास एक ही चीज अवेलेबल थी, वो थी रिएजेंट। इस बार प्रोडक्ट और रिएजेंट दोनों का अमाउंट दिया है। तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना होगा कि रिएक्शन जो है वो इनिशियली फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। समझ में आया? इनिशियली रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा, सबसे पहले ये फाइंड करना होगा। तो चलो इस रिएक्शन के लिए QP फाइंड करते हैं। Kp दिया है ना। चलो, अब ये दोनों तो सॉलिड है तो इसको तो कहीं पे गिनना ही नहीं है, बाकी दो। चलो, प्रोडक्ट CO2 यानी कि 0.8, NCO 1.4, 0.8 डिवाइड बाय 1.4 करते हैं। 0.8 डिवाइड बाय 1.4, आंसर आता है 0.571। अब देखो, QP is greater than Kp, that's why reverse reaction take places। अब रिवर्स रिएक्शन होगा यानी कि रिएक्शन कौन सा होगा, Fe जो कि सॉलिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और वो हमें देगा FeO जो कि सॉलिड है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया? चलो, अब ये तो सॉलिड है तो इसका नहीं लिखना है, ये इनिशियली है 0.8, ये सॉलिड नहीं लिखेंगे, ये इनिशियली है 1.4। चलो, इसमें से कितना कम होगा, तो 0.8 माइनस x होगा, और यहां पे कितना बनेगा, x जितना बनेगा। ओके, अब इस रिएक्शन का Kp क्या होगा, तो ओरिजिनल Kp से रिवर्स हो जाएगा ना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.265, क्योंकि रिएक्शन को हमने रिवर्स किया है, दैट्स व्हाई विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का प्रेशर यानी कि CO का 1.4 प्लस x, अब रिएजेंट का डिनोमिनेटर में यानी कि 0.8 माइनस x। ये बहुत ही स्पेशल सम है, याद रखना, अगर गलती की तो आपका x माइनस में आएगा। सो 0.8 माइनस x इक्वल टू 0.265 इंटू 1.4 प्लस x।
चलो, therefore अब 0.265 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0.265 इंटू 1.4, आंसर आता है 0.371 प्लस 0.265x 0.8 माइनस एक्स, चलो माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.265x इक्वल टू, इसको इस तरफ ले लो, सो 0.8 माइनस 0.371, क्या आंसर आता है इसका 0.429. ओके, सो सिंपली x इक्वल टू 0.429 डिवाइडेड बाय 1.265. सो इसको 1.265 से डिवाइड कर दो, आपका x रहेगा 0.34, तो हमें x मिल गया. ठीक है, अब दोनों का इक्विलिब्रियम प्रेशर चाहिए, यानी कि प्रेशर ऑफ CO विल बी इक्वल टू 1.4 प्लस x. ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, सिंपल सी बात है, 1.4 प्लस 0.34, देखो आपका आंसर मिल गया 1.74. ये आपका PCO का पार्शियल प्रेशर हुआ. अब वैसे ही PCO2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 0.8 माइनस 0.34, तो इसका आंसर रहेगा 0.46. तो दोनों का आपको इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर मिल गया. ये एक स्पेशल सम है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होता है, ये पहले हमने प्रूव किया है, तभी जाके ये सम क्लियर हुआ है, वरना इसके अलावा ये सम क्लियर नहीं होगा. तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखना है. ओके, अब आगे का जो है सम नंबर 21 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलो, थैंक यू सो मच.